Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are starting off with a chapter of capital budgeting. So capital budgeting is a type of investment decision. So here the word capital means the total investment of a company in money, tangible and intangible asset, whereas budgeting is defined as the art of building budgets. So what is budgets? Budgets are a plan of and action expressed in quantities and numbers. So why do we need capital budgeting? Because the resources of a company are limited, and in order to gain the maximum advantage with those limited resources, the function is very important because it involves organization decision to invest its resources in long-term assets, and also these assets are extremely important to the firm because in general the organizational profits are derived from the use of these capital investments. Thus, we can say capital budgeting refers to long-term planning for proposed capital outlay and their financing. Also, the firm's decision to invest in current fund more efficiently in long-term activities in anticipation of an expected flow of future benefit over the years. इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो हम कैपिटल अपने कंपनी में एम्प्लॉय कर रहे हैं टू परचेज डिफरेंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स, तो इसका बेनिफिट ओवर द लॉन्ग टर्म ईयर्स में हमें मिलने वाला है. सो वी नीड टू इन्वेस्ट such a way the capital so that we derive the maximum benefit out of it. So we can say the importance of capital budgeting is because of its characteristics, that is, it is for long term implication. लॉन्ग टर्म के लिए होता है. फिर दूसरा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट आर इन्वॉल्व. तीसरा कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क और अनसर्टनिटी. इफ़ वी एम्प्लॉय इन सच एसेट जिसका रिस्क बहुत ज़्यादा और उसका स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा हो, तो इसमें रिस्क और अनसर्टनिटी भी काफ़ी होता है ड्यूरिंग कैपिटल बजटिंग. देन ऑल्सो इट इज़ complex process calculation of capitals and other things. Also, once you have bought an asset, you cannot reverse the decision or you cannot buy or sell it, so it is irreversible. So these are the some features of capital budgeting. The next thing we need to learn how to calculate the capital budgets so that we can identify which asset to purchase or which project to invest in. So basically there are two methods, or we can say there are two categorization of techniques of capital budgeting. First method is traditional method. ट्रेडिशनल मेथड को और एक नाम से जानते हैं जो है नॉन डिस्काउंटिंग मेथड. नॉन डिस्काउंटिंग वाई? बिकॉज in order to find out the present worth, they do not discount the cash. We have already studied discounting method when we were studying time value of money. So एक है ट्रेडिशनल मेथड या नॉन डिस्काउंटिंग मेथड, दूसरा है मॉडर्न और डिस्काउंटिंग मेथड. So under traditional we have two methods. एक है payback period method, दूसरा average rate of return. और मॉडर्न के अंदर there are numerous methods. We'll study all of them one by one. पहला है net present value. फिर internal rate of return. Profitability ratio.
और ऑल्सो नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, फिर मॉडिफाइड IRR। सो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न टेक्निक। सो द फर्स्ट ट्रेडिशनल टेक्निक वी हैव इज द पे बैक पीरियड। सो पे बैक पीरियड में जनरली डिफाइन किया जाता है कि सपोज एक इन्वेस्टमेंट किया, उसका रिटर्न आपको नंबर ऑफ ईयर्स या हाउ मेनी ईयर्स में आपको वापस मिलेगा। सो उसको डिटरमाइन करने के लिए वी हैव पे बैक पीरियड। सो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, कि एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट किए थे और फिर एवरी ईयर कितना यहाँ पे जो एनुअल फ्लो लेंगे दैट इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे जनरली जो हमारा प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे वापस से टैक्स कैलकुलेट करने के बाद। फाइन। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कंपनी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़, नहीं सपोज 2 लाख ले लेते, ठीक है, 2 लाख, और उसका एनुअल कैश फ्लो, एनुअल फ्लो है फर्स्ट ईयर का 50,000, नेक्स्ट ईयर का 40,000, 60,000, 80,000 और 50,000। और पे बैक पीरियड इसका कैलकुलेट करना है, सिंस 5 ईयर्स का हमने टाइम लिया है, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन में ये बनता है, तो ईयर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बिकॉज वी आर टेकिंग ईयर 5 ईयर्स का। फिर इन फ्लोज as per the question is 50, 40, 60, 80 and 50. Now this is the flow and we'll take out its cumulative frequency. This means 50,000 first year ka. Now 50,000 में we'll add this 40,000 or whatever we will get, we'll write it over here. That is 40,000 plus 50,000, that is 90,000. Then 90,000 plus 60,000, 1,50,000. 1,50,000 plus 80, 2,30,000. 2,30,000 plus 50, 2,80,000. Now we can see here कि हम लोग का इन्वेस्टमेंट टोटल 2 लाख है, तो हमें 2 लाख थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में रिकवर हो रहा है, इसके अमाउंट के बीच में हमारा। सो वी नो कि 3 साल तो पूरी लगेंगे, सो पे बैक पीरियड 3 ईयर्स तो पूरी लगने वाला है, प्लस अब एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा, फॉर दैट हम करेंगे लेस 1,50,000 में से जितना टोटल अमाउंट हमारा, सो 2 लाख से 150, 50,000 कम है अगर 3 ईयर्स देखते हैं, और वही अगर 2,30,000 देखते हैं, सो 2,30,000 माइनस 2 लाख, तो 3 प्लस इसका हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं वी आर गेटिंग 50,000 बाई 30,000, 3 प्लस 1.120, और वी कैन से 4.66 ईयर्स। और अगर अप्रोप्रिएट कैलकुलेट करना है तो 1.6 को इंटू 12 या 365 से करके एक पर्टिकुलर मंथ और ईयर में ला सकते, तो इसका आंसर है 4.66 ईयर्स लग रहा है पे बैक होने में। फाइन, सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। नाउ मूविंग ऑन। और हाँ, पे बैक पीरियड में हम कैलकुलेट करेंगे कि वेदर हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं, इज़ इट अ गुड प्रोजेक्ट और नॉट। उसके लिए हमारा रूल है कि इफ़ पे बैक पीरियड इज़ लेस देन
is less than estimated time, then the project will be accepted. Whereas अगर ये कम हुआ, पेबैक पीरियड इज़ लेस देन एस्टिमेटेड टाइम. एस्टिमेटेड टाइम क्वेश्चन में जनरली मेंशन होता है, इस क्वेश्चन में नहीं मेंशन था. अगर पेबैक सपोज इस क्वेश्चन में ले लेते हैं 4 years, 4 years इज़ द एस्टिमेटेड टाइम कि इतना में हो ही जाना चाहिए, बट यहाँ पे 4.66 years लग रहा है. तो पेबैक पीरियड इज़ मोर देन 4 विच इज़ एस्टिमेटेड टाइम. तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है. हमारे पास 4 years में हमको पे बैक करवाना था, बट दिस इज टेकिंग 4.66 years, तो वील रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट. सो द नेक्स्ट टाइप वी हैव इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें एवरेज निकालना है, ऑल्सो नोन एज द ARR मेथड. इसका फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल नेट अर्निंग बाय ओरिजिनल या फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट. So यहाँ पे average annual net earning, what is this? I'm naming it as A and this is B. So what is A over here? Average earning after tax and depreciation. And B, एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 प्लस एडिशनल नेट वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू. ठीक है, ऐसे ओरिजिनल या एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड किया जाता है. ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लेस स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि जब हम बेच रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, प्लस एडिशनल नेट वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर. इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख फॉर 5 years. सपोज एक मशीन हम लोग खरीद रहे हैं जिसका कॉस्ट है 1 लाख और वो 5 years के लिए चलेगी. ठीक है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स. फॉर 5 years दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है उससे 50,000, 30, 20, 30, 40. ऑल्सो डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 40% दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, एवरी ईयर 40% इज डेप्रीसिएटेड, स्ट्रेट लाइन मेथड. सो यहाँ पे टोटल डेप्रीसिएशन पर ईयर कितना कैलकुलेट होगा. So depreciation will be 1 lakh डिवाइडेड बाय 5 नंबर ऑफ ईयर्स है, तो एवरी ईयर 20,000 का डेप्रीसिएशन होगा. ये सॉरी टैक्स रेट दिया हुआ था, टैक्स रेट 40% है. ठीक है, नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. नंबर ऑफ ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5. फिर प्रॉफिट्स एवरी ईयर का कितना है 50,000,
30,000, 20,000 और 40,000। बिकॉज यहाँ पे जब प्रॉफिट होता है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स होता है, तो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, 20,000 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन होगा। नाउ प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन मतलब प्रॉफिट लेस डेप्रिसिएशन, सो 30,000, 10,000 nil, 10,000, 20,000। नाउ टैक्स दिया हुआ है 40% के रेट से, सो वील कैलकुलेट 30,000 का 40%, 12,000, now profit after tax, so profit after depreciation less tax, now we'll add depreciation, so profit after tax before depreciation, सो यहाँ पे 80,000 से 20,000 ऐड कर देंगे, सब में 20,000 ऐड होगा क्योंकि हर ईयर का डेप्रिसिएशन 20,000 है, देयरफॉर 38,000, 26,000, यहाँ नील था तो सिर्फ 20,000 आ जाएगा। फाइन, एक्सक्यूज मी। इसका समेशन निकालेंगे, वील गेट द टोटल अमाउंट दैट इज 42,000, इसका समेशन निकाल के। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वी हैव द फॉर्मूला एवरेज एनुअल नेट अर्निंग, सो एवरेज एनुअल नेट अर्निंग विल बी सिंपली इसका एवरेज, सो 42,000 सिंस 5 ईयर्स ले रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल और एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारा था 1 लाख रुपीज़ एंड सिंस नो स्क्रैप वैल्यू इज गिवन वील टेक ओनली दिस एज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस 2 प्लस एडिशनल नेट वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू, सिंस नो स्क्रैप वैल्यू इज गिवन, नो एडिशनल नेट कैपिटल, नो स्क्रैप वैल्यू, therefore only original investment which was rupees 1 lakh divided by 2 will be taken, so therefore 42,000 divided by 5 and 1 lakh divided by 2 we'll get into 100, we'll get 8,400 divided by 50,000 into 100, that is 16.8%. so एंड इसका एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का होता है डिसीजन क्राइटेरिया इज़ व्हेन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज़ ग्रेटर देन मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। जनरली मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया होता है, अगर एवरेज वैल्यू इसका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न वील एक्सेप्ट, इसका डिसीजन क्राइटेरिया है। यहाँ पे सिंस कोई दिया नहीं था सो नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है, बट जनरली मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न उससे ज़्यादा आता है तब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज द प्रोजेक्ट विल बी रिजेक्टेड। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। वी हैव डन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिस्काउंटिंग, ट्रेडिशनल मेथड और नॉन डिस्काउंटिंग मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. So in the next video we will be doing the modern and discounting techniques, and thank you for watching my video.